Congratulations and celebration when I tell everyone you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration. My master, His Holiness the Gyalwang Drukpa, began the institution with a profound vision and sincere affection to benefit the people of Ladakh, especially our children, through education, values, compassion, and meaningful opportunities for their future. At the time, it was humbly beginning a small seed plant with a very big hope. Today, after 25 years, it is deeply moving to look back and see how the little seed has grown into a meaningful institution and home for learning for thousands of students. For this journey, I offer my deepest and most heartfelt gratitude to my Master, His Holiness the Gyalwang Drukpa, for his compassion, guidance, blessings, and vision. The foundation he created continues to guide us, and I feel truly fortunate and privileged to be part of that vision. Serving as a director of this institution has been one of the greatest honors of my life. There have been many challenges, many responsibilities along the way, but there have also been countless memories and happiness, fulfillment, and pride. Above all, seeing our children growing, learning, deserve their abilities, overcome challenges, and move forward in life has always been one of the greatest joy of my life. I would especially like to express my sincere and heartfelt gratitude to our today's chief guest, Honorable Shri Kiran Rijiju, for taking the time and making all the effort coming all the way from New Delhi just to join us on this very special occasion. Sir, your presence here today means a great deal to me, to our people, to our school, to our students, and to our entire community. Your presence has made this Silver Jubilee celebration even more meaningful and memorable one. Thank you very much for being with us, for sharing this important milestone with us. I would also like to take this opportunity to express my deepest gratitude to every single person who has contributed to the journey of Drukpa Kharpa School. To our dedicated teachers, staff, thank you for your patience, commitment, love, and tireless work. The work you do every day goes for beyond the classroom. You are helping shape not only the education but also the character and future of our children. To our respected parents, thank you for placing your trust in us and believing in the institution. You have entrusted us with what is the most precious to you, your children, and we deeply value your honor that responsibility. To all our supporters, well-wishers, friends, and beneficiaries, thank you for standing beside the school throughout these 25 years. Every contribution, every word of encouragement, every prayer, and every act of kindness has played a part of bringing us today. And to my dear students, you are truly the heart and soul of Drukpa Kharpa School. Over the year, I have had the privilege
of watching so many of your learning, growing, facing challenges, discover your abilities and becoming confident young people. Your smiles and your achievement and even the challenges you have overcome are all part of the beautiful story of this school. My greatest wishes for you is not simply that to become successful in your career. More importantly, I hope you will become a good human, compassionate, kind, responsibility, honest, courageous, and willing to serve others. Whatever life may take, I hope you always carry the value that you have learned from here. Use your knowledge and your ability not only for yourself, but also for your family, your community, Ladakh, and our nation, India. Remember that true success is not only about how far we go in life, but also about how many people we help along the way. Today, as we proudly celebrate 25 years, we must also look ahead. Our journey is not finished. In many ways, it is only entering a new and exciting chapter. My dream and aspiration for Drupal Makarpa School is to see the institution continue to grow into a higher secondary school and one day, perhaps even to a university. An institution that can provide greater opportunity for our young people and continues to serve the people of Ladakh for generations to come. That dream will require the countless support, guidance, encouragement, and blessings of you all. Therefore, I humbly request you all to continue working with us. We begin the next chapter. Let us all work together to build this not only a strong and respected educational institution, but also a place where knowledge is guided by wisdom, education is rooted in compassion, and success is measured by our ability to contribute to others.
पहले लद्दाखी में, फिर हिंदी, संस्कृत, फिर अंग्रेजी में फ्लोलेस एक जो नेचुरल पेशकश जो कर रहे थे, इंट्रोडक्शन इस स्कूल का जर्नी के बारे में बता रहे थे। मैं बहुत फक्र महसूस कर रहा था कि हमारे बच्चे इतने स्मार्ट है, वेल कल्चर्ड है, वेल मैनर्ड है, और जो परफॉर्मेंस वगैरह जो किया है मुझे बहुत अच्छा लगा। विशेष करके जो तुक्से रिम्पोचे जी ने जो बताया, उन्होंने जो इस स्कूल का जर्नी को बताया, 25 साल उससे पहले का तैयारी, और 25 साल में क्या क्या उन्होंने कष्ट किए और जितने लोग योगदान दिए उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको संक्षेप में बताया है। मैं भी प्रभावित हूँ, मुझे और रोशनी डालने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं भी प्रभावित हूँ इस स्कूल का जर्नी से। कितना खूबसूरत नाम है यहाँ का, जो ट्रुक पद्मा कार्पो, सफेद लोटस के नाम से हमारा धार्मिक प्रतीक जो स्कूल बना है, ये तो 25 साल का जर्नी है, और हम बुद्ध भगवान का आशीर्वाद, उनका ब्लेसिंग के साथ हम उम्मीद करते हैं कि ये स्कूल हमेशा हमेशा जब तक ये युग रहेगा, पृथ्वी रहेगा, ये स्कूल चलते रहेगा। मुझे आपका, गुरु जी दोनों का नाम, सबका नाम सदियों तक लेते रहेंगे। इस स्कूल से जो बच्चे पढ़ के आए हैं, मुझे कोई इसमें संशय नहीं है, बहुत अच्छा इंसान बनेंगे, सब अच्छा नागरिक बनेंगे। इतना अच्छा स्कूल है, शिक्षा जिस तरीके से आप लोग दे रहे हैं, ये तो CBSE एफिलेटेड है, तो जो भारत में अच्छा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं हमारे बच्चे, कर ही रहे, धार्मिक शिक्षा में प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं इस शुभ अवसर पर हमारे परम पावन ग्यालवान ट्रुक्पा रिम्पोचे जी को, जो लद्दाख का प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, लद्दाख स्पल नाम दोस्तुम अवार्ड मिला है, उसके लिए मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। उन्होंने जो एजुकेशन के क्षेत्र में, वातावरण के क्षेत्र में, इन्वायरमेंट, हेल्थ और वुमेन एम्पावरमेंट और आम लोगों की जिंदगी पे जो प्रभाव लाया है, मैं हिज होलीनेस रिम्पोचे जी और तुक्से रिम्पोचे दोनों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग साइलेंटली समाज के लिए जो कंट्रीब्यूशन करते हैं वो हम सब मिलकर भी नहीं कर सकते हैं। आप लोग साइलेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं, आप लोग प्रचार नहीं करते हैं, आप लोग चुपचाप काम करते रहते हैं। कोई कोई लोग काम करके ज्यादा प्रचार करता है, आप लोग इतना ज्यादा काम करता है और कम प्रचार करते हैं। तो यही असली हमारा बुद्ध धर्म का शिक्षा का प्रतीक है कि जो हमको करना है वो करते जाना है। तो आपका और परम पावन जी, आप दोनों का आशीर्वाद से और भी लद्दाख में इस तरह का अच्छा स्कूल में बनेगा, हेल्थ अच्छा होगा, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, महिलाओं का भला होगा, ये सब हम उम्मीद करते हैं। यहाँ क्योंकि मैं भारत सरकार में भी मंत्री हूँ, एक वरिष्ठ मंत्री होने के नाते मेरा बहुत जिम्मेदारी भी है, लेकिन आज मैं डेवलपमेंट का बाकी बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो इस स्कूल का कार्यक्रम के लिए आया है, इसलिए मैं बाकी बात नहीं कहूँगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि आज से 20-25 साल पहले लद्दाख को हम जिस दृष्टि से देखते थे और आज हम जहाँ खड़ा है उसमें जमीन आसमान का इसमें अंतर आया है। उस समय हम जब यूनिवर्सिटी में थे, उसके बाद जब मैं MP थे, तो जी हम लोग 2004 में एक साथ MP थे, तो फिर मैं 2004 में भी लद्दाख आए थे। तब भी हमने कहा था कि एक दिन लद्दाख अपना सपना यूनियन टेरिटरी जरूर मिलेगा, ये हमने तब भी कहा था, और आज लद्दाख यूनियन टेरिटरी के रूप में खड़ा है। अब यूनियन टेरिटरी बनने के बाद क्या क्या और करना है, कई चीजें जो आज से 25 साल पहले जहाँ सड़क नहीं थे, बिजली पानी कुछ भी व्यवस्था नहीं था,
आज माहौल बदल चुका है। आज हर जगह मोबाइल फोन, जो हम लोग सोचते थे कि एक लद्दाख का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए कितना टाइम लगता था, आप सोच के देखिए। आज लद्दाख का अंदर में एक दिन में एक जगह से दूसरा जगह पहुंच। आर्टिकल 371 में आपको एक स्पेशल प्रोविजन देंगे। ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है। आर्टिकल 371 कुछ स्टेट के लिए बना है, हमारे संविधान में जो प्रावधान है। तो पहले जो ऑटोनोमस काउंसिल वगैरह जो देते हैं वो उतना एम्पावर्ड नहीं है। तो अभी आर्टिकल 371 में स्पेशल प्रोविजन लद्दाख के लिए देने के लिए जो घोषणा किया है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, मोदी जी के आशीर्वाद से, वो शेप लेने जा रहे हैं। और उसमें आप अभी जो तैयारी जो चल रहा है, आपका 7 डिस्ट्रिक्ट बनना, पहले 2 ही डिस्ट्रिक्ट थे, लेह और कारगिल। अभी 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ में 7 काउंसिल, डेमोक्रेसी का ग्रास रूट में लोगों का एम्पावर करने के लिए जो भारत सरकार जो कर रहा है, आगे जाकर के आपको पूरे बच्चों को समझ में आ जाएगा कि आज भारत सरकार ने जो लद्दाख के लिए काम किया है वो कितना जरूरी है, कितना मजबूत नींव रखा। काम आगे चलते रहेगा, एक साथ सब काम नहीं होता है। जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, काम भी बढ़ता है, तो ये चलते रहेगा। लेकिन कमिटमेंट हमारा सरकार का हमेशा लद्दाख के प्रति स्पेशल रहेगा। प्राइम मिनिस्टर भी अब फिर से आने वाले हैं लद्दाख में, तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब आएंगे तो वो अपने विचार को आपके सामने में रखेंगे। मैं उनके मंत्रिमंडल कैबिनेट साथी के रूप में मैंने बहुत करीब से देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने हिमालय क्षेत्र के लिए, हमारा नॉर्थ ईस्ट हो या लद्दाख हो या जम्मू कश्मीर हो, बहुत स्पेशल उन्होंने सोचा है कि जैसे चलते आया है ऐसा नहीं चल सकता है। यहाँ का वातावरण अलग है, व्यवस्था अलग है, तकलीफ है, रहने के लिए यहाँ वेदर कंडीशन बहुत ही कठिन है, तो यहाँ में सरकार स्पेशल ध्यान देना आवश्यकता है। इसलिए कई चीजें काम कर रहे, तो मैं इसलिए डिटेल में प्रोजेक्ट वाइज नहीं बताऊंगा क्योंकि आजकल आप लोग सबको लगभग पता ही है। लेकिन मैं 1-2 चीज, क्योंकि इतना पवित्र जगह में आया है, तो मैं 1-2 चीज जो खास मेरे दिल के बात है मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि यहाँ का जो युवाओं ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, इनका स्वभाव देख करके जो मेरे मन में उम्मीद और जागी है कि हमारा भविष्य सेफ है। साथ साथ युवाओं को मैं, जो जनरल युवा है, उसको भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं बौद्ध हूं और हम अपना परंपरा से जीते हैं। हमारा रिंपोचे, हमारा लामा, परम पावन दलाई लामा जी, हमारा बुद्ध भगवान, हम लोगों को जो टाइम टू टाइम जो आशीर्वाद देते हैं, उससे हम अपना जीवन शैली को आगे बढ़ाते हैं। भले हम मॉडर्न क्यों ना हो, हम इंग्लिश का पढ़ाई करते हैं, हिंदी का पढ़ाई करते हैं, लेकिन मेरे जीने का तरीका मेरे पूर्वजों ने दिया है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन वो सीख करके उसको पास ऑन करता है, फिर वो जनरेशन आगे बढ़ता है। अभी जो मैं देख रहा हूं कि हमारा गुरुजी, माता पिता, हमारा जो वरिष्ठ है, उनसे कम सीख करके इंटरनेट से अमेरिकन कल्चर ज्यादा सीखता है, यूरोपियन कल्चर ज्यादा सीखता है। ये ठीक नहीं है। ठीक है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन के लिए तो अच्छा है, जानकारी के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए अच्छा है। जीवन शैली उससे हम नहीं सीख सकते। मैं अगर लद्दाखी हूं तो मुझे लद्दाखी के तरीके से जीना पड़ेगा और लद्दाखी भाषा ही मेरा मूल भाषा हमेशा रहना चाहिए। मैं अंग्रेजी का अपना माँ बाप का भाषा नहीं बना सकता। कभी कभी इंटरनेट में कुछ ऐसा बात बोल देता है, पूरा युवा भड़क जाता है। हम संयम से काम करना चाहिए। पीस, नॉन वायलेंस, ये बुद्ध भगवान का शिक्षा है हमारे लिए।
हमारे यहाँ वायलेंस होगा तो ये ठीक बात नहीं है। बुद्ध का धरती में हम वायलेंस पनपने नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं अपने आप को भी भाग्यवान भी मानता हूं, लेकिन उससे ज्यादा मैं एक जिम्मेदार इंसान मानता हूं, क्योंकि ये बुद्ध का धरती में आप सोच के देखिए, बुद्ध भगवान आज से 2600 साल पहले इस धरती में कदम रख करके हमको शिक्षा देकर के परिनिर्वाण हो गए। और मैं इतने साल बाद 1947 में भारत को आजादी मिला और मैं पहला इस देश का एक बुद्धिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बना। कभी कोई लोग इस देश में कैबिनेट मंत्री नहीं था। सोच के देखिए, राज्य मंत्री के रूप में, एमपी के रूप में रहे, लेकिन देश को चलाता है कैबिनेट। कैबिनेट में फैसला होता है देश का तकदीर। और कभी भी हमारा बुद्धिस्ट आदमी कैबिनेट में बैठने का मौका नहीं मिला। मैं जब पहला कैबिनेट मिनिस्टर बना और मैं पहला कानून मंत्री बना, एक ट्राइबल होने के नाते, एक बुद्धिस्ट होने के नाते, एक रिजर्व कैटेगरी से आया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बाद जब मुझे इस देश का कानून मंत्री बनाया तो मैंने प्रधानमंत्री को जाकर के मैंने सलाम नमस्ते करके बताया कि आपने जो हमारा बौद्ध समाज, हमारा SC ST कम्युनिटी के लिए जो सम्मान दिया है, ये हमेशा हमेशा याद रखेगा। मैं जब बुद्ध का अवशेष लेकर के जाता हूँ, कभी जापान, कभी मंगोलिया, कभी वियतनाम, कभी थाईलैंड, अभी मैं भूटान जाके आया, सब लोग सोचते हैं कि भारत बुद्ध का धरती है, लेकिन बुद्ध के धरती में पहले बार कैबिनेट मिनिस्टर बना है और बुद्ध का अवशेष को वो खुद के लेके आया है। तो पवित्र का जो झलक है महसूस कर सकता है। इसलिए लद्दाख तो साक्षात बुद्ध का पूरा छाप है यहाँ में। पिछली बार शायद जब अमित शाह जी आए थे, उन्होंने भी बात किया, और जब उसी समय कुछ दिन के बाद में बुद्ध का अवशेष को यहाँ दर्शन करने के लिए मैं खुद जब आया तो मैंने फील किया है, सुबह सुबह 5:30 6 बजे से लोग लाइन में खड़े हैं बुद्ध का अवशेष का दर्शन करने के लिए, और शाम देर तक कितना दूर दूर से आते हैं। ये हमारा आस्था का प्रतीक, हमारा विश्वास, लद्दाख के लोगों का विश्वास है। एक जमाने में हमारा बुद्ध धर्म पूरा सेंट्रल एशिया, रशिया, पूरा ये भारतवर्ष पूरा बुद्ध ही था, लेकिन हम लोग सब सेकुलर लोग हैं। हम हर धर्म का बराबर सम्मान देते हैं, हर धर्म का बराबर इज्जत देते हैं। आज मैं माइनॉरिटी अफेयर्स का भी मंत्री हूँ। हिंदू धर्म मानने वाला को छोड़ के जो बाकी 6 समुदाय है, इस्लाम मानने वाला जो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई मानने वाला जो क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्ध है और पारसी है, ये 6 समुदाय को भी विश्वास में रख के आगे ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने मुझे जिम्मेदारी दिया है। मैं वो काम भी कर रहा हूँ। और जब मैं यहाँ अलग अलग मंत्रालय का हिसाब से मैं जब मंत्री थे तो यहाँ आते थे, आप देखा होगा पहले बार लद्दाख में जब मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, आपको यहाँ स्टेडियम, आइस हॉकी के लिए कितना सुविधा हमारा समय में मोदी जी का आशीर्वाद से हमने स्पोर्ट्स का फैसिलिटी लद्दाख को दिया है। मैं कानून मंत्री भी था, प्रपोजल डाला, अभी उस दिन कैबिनेट में लद्दाख के लिए सेपरेट हाईकोर्ट बेंच देने का मैं कैबिनेट ने फैसला किया है। तो यही आपका हाईकोर्ट बेंच होगा, आपको जम्मू जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, श्रीनगर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपका यहाँ हाईकोर्ट का बेंच आने वाला है। एक के बाद एक जो स्टेप हम लोग ले रहे हैं, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन हो, चाहे काउंसिल क्रिएशन हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट कर रहा हो, हमारा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लद्दाख के लिए जो काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ ये लद्दाख के लोग बहुत पहले डिजर्व करते थे। यहाँ के लोग कितने देशभक्त लोग यहाँ रहते हैं, और ऐसे में जो हमारा धर्म मानने वाला हमारा जो गुरु है, हमारा रिंपोचे लोग हैं, इनका आशीर्वाद से हम लोग चलते हैं। इसलिए मैंने अभी निर्णय किया, मेरे गांव में हम लोग सब बौद्ध हैं, लेकिन मैं निगमा मानता हूँ, तो एक ही है, कोई अलग नहीं है, लेकिन हमारा एक प्रतीक है। मेरे गांव में मैंने निर्णय किया
कि गुरु पद्मा संभवा जब 8th सेंचुरी में अरुणाचल प्रदेश में आए थे तो उस समय तो अरुणाचल नाम नहीं था, उस समय कोई नाम नहीं था, अपना अपना गांव का नाम से चलता था। तो गुरु पद्मा संभवा हमारा गांव आया, तो उसकी याद में मैंने काम शुरू किया है कि दुनिया का सबसे ऊंचा गुरु पद्मा संभवा का मूर्ति मैं अपने गांव में बनाने जा रहा हूं। कभी मौका मिलेगा आपको भी देखने को मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन बनाने में कम से कम 6-7-10 साल में लग सकता है इतना बड़ा प्रतिमा बनाना। लेकिन जो भी हो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग जहां भी चाह तक पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच जाए, अपना परंपरा को भूलना नहीं चाहिए, अपना धर्म, अपना संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। यही शिक्षा इस ध्रुव पद्मा कार्पो यहाँ स्कूल में शिक्षा दिया जा रहा है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके स्कूल में। और मुझे जी हमको बुलाया, आपका सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में मैं आपके बीच में आया हूँ। आज तो आपने मुझे कुछ मांगा नहीं है, आपने सिर्फ मेरा तारीफ किया है, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ आपका इस स्कूल के लिए कोई भी चीज मुझे आप कहेंगे मैं कभी ना नहीं करूँगा, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहेगा। मेरे दिल में रहेगा आपके पूरा ये इंस्टीट्यूट। और फिर से मैं आज इस सिल्वर जुबली अवसर पर जितने भी आए हैं आपके साथ और हिज होलीनेस आप दोनों को मैं साथ साथ में जितने बच्चे हैं आपको फिर से अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं प्रार्थना करता हूं बुद्ध भगवान से कि आप हम लोग को बुद्ध का जो संदेश है वो आपके माध्यम से हमको मिलता है, तो आप ऐसा आशीर्वाद देते रहिए और हम आपके चरणों में हमेशा रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। पूरा हमारा स्टूडेंट आपका पूरा इस पूरा जो ग्रुप पद्मा कार्पो स्कूल में जो आपका संस्था से जुड़े हुए जो बाकी लोग आए हैं, सबको सिल्वर जुबली के इस शुभ अवसर पर अभिनंदन देता हूं और आगे के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और फिर से मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े